بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ میں پھر توسیع۔ وزیر اعلیٰ نے 12 نئے معاونین خصوصی مقرر کر دیے۔ سندھ حکومت کے 8 ترجمان بھی فائنل۔ معاونین میں پیر فضل شاہ، لیاقت آسکانی، تنزیلہ ام حبیبہ، امیر حمزہ رئیس، رضا ہارون شامل ہیں۔ خیر محمد شیخ، امان اللہ، کلثوم چاندیو، محمد علی راشد، محمد علی بھٹو اور حسین اسلم بھی معاونین میں شامل ہوں گے۔ نادر نبیل، سکھ دیو سورداس، بلند خان، سمیتا افضال سندھ حکومت کے ترجمان بن گئے، جبکہ تحسین عابدی، ہیر سوہو، اقربہ فاطمہ، مصطفیٰ عبداللہ بھی ترجمانوں میں شامل ہیں۔ سندھ کابینہ میں پھر توسیع۔ وزیر اعلیٰ نے 12 نئے معاونین خصوصی مقرر کر دیے۔ سندھ حکومت کے 8 ترجمان بھی فائنل۔ معاونین میں پیر فضل شاہ، لیاقت آسکانی، تنزیلہ ام حبیبہ، امیر حمزہ رئیس، رضا ہارون شامل۔ جبکہ خیر محمد شیخ، امان اللہ، کلثوم چاندیو، محمد علی راشد، محمد علی بھٹو اور حسین اسلم بھی معاونین میں شامل ہیں۔ نادر نبیل، سکھ دیو سورداس، بلند خان، سمیتا افضال سندھ حکومت کے ترجمان بن گئے۔ تحسین عابدی، ہیر سوہو، اقربہ فاطمہ، مصطفیٰ عبداللہ بھی ترجمانوں میں شامل ہیں۔ فالتو بیٹھی تھی اس لیے لکھ لیا، اگر پسند آئے تو نمبر دے دینا۔ یہ کوئی لطیفہ نہیں بلکہ انٹرمیڈیٹ امتحان میں حصہ لینے والی طالبہ نے پرچے پر لکھا ہے۔ انٹر امتحانات کے نتائج نے تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ ناقص نتائج کی ایک بڑی وجہ سٹی 21 سامنے لے آیا ہے۔ کئی طلباء پرچوں میں گانے، کہانیاں اور غیر متعلقہ جملے لکھ کر چلے آئے۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پڑھائی سے دل اچاٹ، طلبہ کا غیر سنجیدہ رویہ، سالانہ امتحان بھی مذاق بن گیا، اساتذہ بھی تشویش کا شکار۔ رواں سال انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج نے تعلیمی نظام پر سوال اٹھا دیے۔ ناقص نتائج کی بڑی وجہ سٹی 21 سامنے لے آیا۔ طلبہ کی حیران کن کارکردگی سامنے آ گئی۔ سٹی 21 کی کھوج کے دوران طلبہ کی ناقص کارکردگی کے علاوہ غیر سنجیدگی کے حیران کن واقعات سامنے آ گئے۔ کئی طلبہ پرچوں میں گانے، کہانیاں اور غیر متعلقہ جملے لکھنے لگے۔ پرچوں میں مزاحیہ کہانیاں لکھی گئی ہیں، کسی نے گھر کی کہانیاں لکھی تو کوئی گانے اور دیگر مواد لکھ کر چلتا بنا۔ غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے تعلیمی معیار پر سوالات اٹھنے لگے۔ رواں سال کے امتحانات میں طلبہ کی غیر سنجیدگی نے پورے تعلیمی نظام کو چیلنج کر دیا۔ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ 3 ہٹی لیاری ایکسپریس وے سے متصل اراضی پر 2000 جھگیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جبکہ اے سی لیاقت آباد ڈاکٹر سائرہ خان کے مطابق تجاوزات کے خاتمے سے خوبصورتی اور مستقبل میں اربن فارسٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ رضوان احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ میں تجاوزات مافیا کے گرد شکنجہ کس لیا گیا۔ لیاری ایکسپریس وے 3 ہٹی کے مقام پر آپریشن کارروائی کے دوران 2000 جھگیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن لیاقت آباد ڈاکٹر سائرہ خان نے بتایا کہ تجاوزات کے خاتمے سے علاقے میں خوبصورتی اور مستقبل میں اربن فارسٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جی بالکل، کمشنر صاحب جو ہیں وہ ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں پر جو انکروچمنٹ بار بار ہو رہی ہے اس کو ہم پریونٹ کریں، سو دیٹ ہم اس کا جو ہے یوزیج پبلک پرپز کے لیے، اور کلائمیٹ کا آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ہم اس پر اربن فارسٹ کا آپشن ہے، تو ڈفرینٹ آپشنز ہیں، انشاءاللہ یہاں پر بھی ایک لانچ کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیاقت آباد محکمہ انسداد تجاوزات کے MC انیب شمیم بولے، تمام کارروائی پر امن انداز میں انجام دی گئی۔ 3 ہٹی پل کے نیچے آباد جھوپڑی کئی سماجی مسائل کا سبب تھی۔ کمشنر صاحب کی ڈائریکٹیو ہے، DC صاحب کی ڈائریکٹیو ہے، اور ہمارے سینئر ڈائریکٹر ہیں عمار خان، ان کی ڈائریکٹیو ہے کہ 3 ہٹی برج سے لیاری لیور پہ جتنی انکروچمنٹ ہے، جتنی جھگیاں، ان سب کو کلیئر کروانا ہے شام تک، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری 2000 کی جھگیاں ہیں پوری شام تک آج کلیئر کر دیں گے۔ آپریشن میں KMC محکمہ انسداد تجاوزات اور پولیس نے حصہ لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تجاوزات اور غیر قانونی جھگیوں کے خاتمے سے شہریوں کو صاف ستھرا اور ہرا بھرا ماحول ملنے کی توقع ہے۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور ناظرین، سندھ اسمبلی کی جانب سے انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے نتائج کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔
जबकि सिंध असम्बली में जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री के मुतालिक तरमीमी बिल भी पेश कर दिया गया। तफसीलात आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में देखिए। इंटरमीडिएट नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात, मुतनाज़ा रिजल्ट की गूंज सिंध असम्बली तक पहुँच गई। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि हुकूमत ने इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के हालिया नताइज के बारे में असम्बली की पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सरदार शाह की निगरानी में कायम पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद, यूसुफ बलोच, MQM के अब्दुल वसीम, ताहा अहमद, जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक और PTI के हामी आज़ाद रुकन शब्बीर कुरैशी शामिल होंगे। ने अपोजिशन लीडर से ये बात की है कि हम आपको ऑफ़र करते हैं कि हम कमेटी बना देते हैं इस असम्बली की, और क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के जहन में यही चीज़ है कि हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत और मेरिट पर आगे आएँ। ज़िया लंजार ने जामियात में वाइस चांसलर्स की तकरीरी के कानून में तरमीम का बिल पेश कर दिया, जिसके तहत अब 21वीं ग्रेड के सरकारी ऑफिसर को भी वाइस चांसलर मुकर्रर किया जा सकेगा। अंडर रूल 256 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध 2013 to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the supplementary orders of the day. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. इससे कबल लियारी जनरल अस्पताल की अबतर हालत से मुतालिक सज्जाद हुसैन सुमरो के तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचो ने बताया कि अस्पताल की बेहतरी के लिए वो मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करेंगी। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इनकी जायज़ बात है कि मैं एक कमेटी बनाऊँ जो इसकी मुश्किलात को देखे, और ज़रूर मैं करूँगी। और इसकी जो इन्होंने निशानदही की है फाजिल रुकन ने, मैं उसकी भी मैं कोशिश करूँगी इंक्वायरी करा के तो बेहतर तरीके से उसके ऊपर किया जाए। जो आपने OT टेबल की बात की। सिंध असेंबली का इजलास मंगल के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध में बच्चों की शरह अमवात कम मगर थर की खबरें ज़्यादा उछाली जाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीडिया से शिकवा। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बच्चों की बढ़ती अमवात पर इजहार तशवीश। जबकि जियाली चेयरमैन का सिंध के हर जिला में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी कायम करने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुराद अली शाह बोले कि हुकूमत सिंध सेहत के शोबे में पूरे पाकिस्तान में क़यादत कर रही है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम ब्रिंद। फाओ सिविल अस्पताल आमद, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के टेली मेडिसिन सैटेलाइट सेंटर के कंट्रोल रूम का दौरा किया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मीडिया से शिकवा किया कि सिंध में बच्चों की शरह अमवात कम है लेकिन थर की खबरें ज्यादा उछाली जाती हैं। ताहम दीगर सूबों में बच्चों की शरह अमवात बाइस तशवीश है। फखर से कहता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध वफाक को पीछे छोड़ रहा है। ये जो कमी आई है इनफेंट मोर्टेलिटी रेट में और आपकी जो कामयाबी है इसके पीछे एक ये फैक्टर, दूसरा मैं समझता हूं कि ये एक और मिसाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के PPP मोड के कामयाबी का। इस मौके पर वजीर आला मुराद अली शाह बोले चाइल्ड लाइफ अस्पतालों ने बड़े और मारूफ प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर काम किया। हम मजीद इमरजेंसी रूम बनाएंगे। हुकूमत सिंध सेहत के शोबे में पूरे पाकिस्तान में क़यादत कर रही है। इंशाअल्लाह ताला सिंध की हुकूमत जिस तरीके से बाकी शोबों में ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में लीड कर रही है, पूरे पाकिस्तान को हम दिखाएंगे कि हमारी एक चाइल्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप एक, और जैसे अभी बताया भी कि शुरुआत हमने की थी, अब पंजाब में भी कुछ सेंटर्स हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम और लीड करके सिंध में वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इसके बाद होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने टेली मेडिसिन पर पेशेंट्स और डॉक्टर के माबैन फ़ोन और वीडियो सिस्टम पर कोऑर्डिनेशन का जायजा भी लिया। कैमरामैन हारिस के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। क्राइम की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाहराह फैसल थाने की हदूद में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी ने मैकेनिक को कुचल दिया। हादसे में मैकेनिक जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सरकारी गाड़ी नौजवान लड़का चला रहा था। सिटी 21 ने सरकारी गाड़ी की तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली हैं। सरकारी गाड़ी चीफ मिनिस्टर के नाम से रजिस्टर्ड है।
आपको बताएं कि टैक्स पेयर्स के पैसों पर FBI अफसरान की मौजें लग गई हैं। FBI का टैक्स दहिंदगान के पैसों से अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। FBI अफसरान के लिए 1000 से ज़ायद नई होंडा सिटी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इस अहम तरीन मंसूबे पर 3 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। मालूम दिल बेरहम किफ़ायत शुआरी के नाम पर फजूल खर्ची की इंतहा। FBI का अपने अफसरान के लिए टैक्स दहिंदगान की रकम से अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदने का फैसला। FBI ने अफसरान के लिए 1010 नई होंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हुकाम ने मंतिक पेश की कि टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफसरान को नई गाड़ियां दी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक FBI 3 अरब की लागत से होंडा सिटी गाड़ियां ली जा रही हैं। नई गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम लगाने के साथ अगले दरवाजों और फ्रंट शीशे पर FBI का लोगो भी लगाया जाएगा। नई गाड़ियां इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम अफसरान को फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक FBI की गाड़ियां डिलीवरी का प्रोसेस मई 2025 तक मुकम्मल होगा। नई गाड़ियां फराहम करके पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल इन्वाइसिंग पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। FBI के मुताबिक इससे जो सेक्टर टैक्स नेट में नहीं उनको टैक्स सिस्टम में लाया जाएगा और टैक्स चोरी के खिलाफ FBI की इन्फोर्समेंट को मजबूत बनाया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मेयर कराची मुतहरिक हो गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़िले कुरंगी के बेड़े में मजीद गाड़ियां शामिल हो गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तनकीद का जवाब हम अपने काम से देंगे। रिपोर्ट करेंगे शुएब मुख्तार। शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। मॉडल कॉलोनी यार्ड में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़िला कोरंगी को गाड़ियों की तकसीम की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब से खिताब में मेयर कराची बोले कि कोरंगी में गली महल्ले से कचरा उठाने के लिए मशीनरी में इजाफा किया गया है। तनकीद की सियासत का खात्मा करके तामीर व तरक्की की सियासत करेंगे। जिला कोरंगी के अंदर जो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रही है, उस हवाले से आप तमाम दोस्तों को हमने मदऊ किया ताकि आपको बता सकें कि किस तरीके से वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नया इक्विपमेंट, नई मशीनरी को अपने निज़ाम में ऐड किया जा रहा है ताकि ज़िला कोरंगी के अंदर गली मोहल्लों के अंदर हम बेहतरी ला सकें। आए दिन आप दोस्तों को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी गुफ्तगू के बजाय हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जमात इस्लामी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त लेने पर माजरत ख्वाह हूँ। उनके तनकीदी वक्त को तामीर व तरक्की के वक्त में तब्दील कर दिया है। ये लोग फजर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इनके झंडे अब लाहौर में लगने चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से कि मैंने उनका अलॉटेड टाइम, वो शायद ऊपर से लिखवा के आए थे, 11 बजे का तनकीदी टाइम, उस तनकीदी टाइम तामीराती काम में या तामीराती टाइम में कन्वर्ट कर लिया। मैं माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उनका टाइम मैंने ले लिया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 11 नहीं 10 बजे करना शुरू कर दें या 12 बजे करना शुरू कर दें, बिकॉज बास तो वो नहीं आएंगे। फजर के वक्त भी कर सकते हैं, वैसे वो उस वक्त उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। मेयर कराची का कहना था कि जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी की बात की थी, जिस पर एक माफिया अदालत चली गई और फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सिंध हुकूमत से इस मामले पर कानून साजी की दरखास्त की है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे खेलों के। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि लाठी टाउन में मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई। तनख्वाहों में ताख़ीर के खिलाफ मजदूर तंजीमें दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज कर रही हैं, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि टाउन चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर की नूरा कश्ती का निशाना मुलाजमीन बन रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। तनख्वाहों में ताखीर पर मजदूर तंजीमें सरापा एहतजाज। लांडी टाउन में दफातर की तालाबंदी, मुलाजमीन की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। कहते हैं टाउन चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर की नूरा कुश्ती में मुलाजमीन निशाना बन रहे हैं। हम मुलाजमीन लोग हैं, हैंड टू माउथ हमारी लाइफ गुजर रही होती है। बहुत मसले मसाइल लोगों के पास। आज हमने हड़ताल स्कूल अपना इसलिए ऑफ किए हैं सारे कि हमारे पास टीचर्स के पास किराया तक नहीं है, वरना कौन खुशी से रोडों पे निकलता है। और बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं, मसलन मेरी एक टीचर है, वो बेवा हैं, उनका पूरा गुजर बसर इस तनख्वाह पर है। MKM पाकिस्तान लेबर डिवीजन और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की
सिंध अर्बन लेबर यूनियन के एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक मुलाजमीन का कहना था कि वो पहले ही तमाम मराज से महरूम हैं। तनख्वाह बाकी बची थी वो भी वक्त पर नहीं दी जा रही है। हर माह की तनख्वाह 30 से 5 तारीख तक हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ होती नहीं है। और अब ये हालत हो गई है लांडी के अंदर कि मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। इस वक्त यहाँ पे जो लानी टाउन के अंदर सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है। नूरा कश्ती की है, दो अफसरान की आपस की लड़ाई है जिसको जवाब बनाकर 1260 मुलाजमीन को परेशान किया जा रहा है। चेयरमैन की हाथ में, हम चेयरमैन का उन्होंने कहा कि हम दोनों आगे हम दोनों साथ बैठेंगे। जब चेयरमैन साहब आए तो एमपी साहब उठ के चले गए। लांडी टाउन मुलाजमीन का कहना था कि चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर लांडी की बाहमी रंजिश का निशाना मुलाजमीन बन रहे हैं। सिंध हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टिडाप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश नहीं हुए। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने मुल्ज़िमान के वकला को तहरीरी दलाइल जमा करवाने की हिदायत कर दी। लापता अफराद केस, विफाकी और सूबाई हुकूमत ने पॉलिसी से मुतालिक मजीद वक्त मांग लिया। लापता अफराद के केसेस में अहम पेशरफ भी हुई। 8 लापता अफराद के केसेस में से 4 अफराद बाजियाब होकर घर वापस आ गए। पुलिस अफसर के अगवा बराए तावान का केस अदालत ने दरखास्त जमानत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पासपोर्ट ऑफिस सदर रोड गैर कानूनी पार्किंग का केस, सिंध हाई कोर्ट ने ठेकेदार से रिपोर्ट तलब कर ली। झगड़े के दौरान हामला बीवी को कत्ल करने का केस अदालत ने मुल्जिम को 15 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकिली का केस अदालत ने मफरूर हुमैरा और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया।